Judges are fools unless this language is used. These judges are not going to सुधरेंगे नहीं. उनके रिफॉर्म की आप उम्मीद मत कीजिए कि इस तरह से अगर जाएंगे जज के सामने तो आप तो भीख मांगे. जज को भी चुनौती देने की जरूरत है, मुट्ठी बांधने की जरूरत. ये जज संविधान नहीं समझता है. He is not using constitutional rights. And these are some of the dilemmas we face. I would kindly urge you, please, to consider these dilemmas. Because आप बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए भला कर रहे हैं, लेकिन इस भलाई में दूसरों का नुकसान है अगर इसके बारे में न सोचें. तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सोचें. थैंक यू दुनू जी. संदीप ने प्रेजेंट किए, हमारी गाइडलाइंस नहीं और ना ही हमने एक्सेप्ट की है. दैट इज समथिंग विच इज बीइंग कम अप बाय कमिश्नर्स ऑफिस विच इज इन पब्लिक डोमेन टू गिव देयर कमेंट्स. जैसे वक्त बहुत कम था इसलिए हम हर चीज़ पे उस पर कमेंट नहीं दे पाए, पर हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते. उस गाइडलाइंस में इतने सारे लैक्यूनाज हैं और वो वैसे के वैसे पारित ना हो. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप, शक्तिमान जी, अय्यर जी और जो लोग हैं जिन्होंने सालों तक संघर्ष किया है इस इशू पे, वो अपने इनपुट्स भेजें और ये जिस स्थिति में है उस स्थिति में ना आ जाए, इसलिए हमको एफर्ट करना ज़रूरी है. और वही हमने पहले सेशन में जो कुछ भी थोड़े से वक्त में हो सकता था वो किया. दूसरी बात रही दिल्ली हाई कोर्ट्स की. दिल्ली हाई कोर्ट्स आज संवेदनशील है इसीलिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स लॉयर्स जो बार है उन्होंने खुद हम लोग हमारे साथी इंदू जी खुद उठ खड़े होते हैं कोर्ट में. कई बार मिलून ने किया, तो हमने सेंसिटाइज किया है जजेस को, हमने कोर्ट को सेंसिटाइज किया है. इसीलिए आज कोर्ट संवेदनशील है. हमने HRLN के लॉयर्स जो है दूसरे स्टेट्स में जाके आर्ग्यू किया. जैसे मैंने अभी जबलपुर में जाके एक मैटरनल हेल्थ पे मैटर आर्ग्यू किया. फर्स्ट हियरिंग में जजेस सुनने के लिए तैयार नहीं थे. दूसरे हियरिंग में ही हर्ड मी. देन ही गॉट शिफ्टेड टू इंदौर. इंदौर में जब उनके सामने उसी इशू पे मैटर आया, उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया. It is not about which city you are in, it's not about which high court you are sitting, it's about the bench. Bench needs to be aggressive and bench needs to demand that these are our fundamental rights and we are not going to take it in piecemeal. It's not acceptable. We want our rights in their full-fledged form. So we are not, me and my friends here are not compromising on rights. We are talking about the last man on the street today in this forum because there is no representation for that person. I am capable of standing for myself, but that last person on the street is not capable to represent. Yes, their demands has to be taken in. That's why this campaign is here, and we've been talking about involvement of the last man on the street in this campaign because it's not about how we feel, but they should be able to represent themselves and they should be empowered to represent themselves. It is just an effort to try and put their issues and try and discuss those issues and not and to see that they are not left alone and just to stand up in a solidarity. That's what we are doing. We are standing in solidarity, saying that we are there. I'm still young. Maybe I'm at least I like to say that. No, I'm also young. Yeah. So there will be mistakes which will be committed in ways, but then I really appreciate guidance and comments from seniors like you, and thank you very much for your comments, and we'll definitely think about it. But again, I urge that we all should send comments to Sandeep on the document, the hopeless document which he presented today. Clarification. The plan में लिखा है, and the Delhi High Court just picked that up from the master plan and the Supreme Court has taken it on. So I don't think it's an accepted norm, Dunuji. I think we are talking about capacity of shelters. The Delhi master plan did not have a norm at all. It mentions one shelter for one. Not this one, the previous one does not. Right. So where does this norm come from?
The Delhi Master Plan 2021 has this norm. Yeah, so from there they've but the Delhi Master Plan 2001 did not have this norm. Yeah. And this norm came because Ashray Adhikar Abhiyan mobilized 18,000 signatures when this master plan was being prepared, saying that there should be a norm. See, you must not ignore the struggles that people have gone through. These struggles give you some results. That's why this norm came. Now this norm having come, we cannot accept it. No, I agree. That's what I'm saying. It has to be at the capacity और हर शहर में जितने homeless लोग हैं और एक shelter की capacity देख के the idea is to build shelters for the entire population. And I don't think anywhere there's, I mean, I think you're very right that the reasons for homelessness are the top of the struggle. I think why are people becoming homeless? लोग बेघर क्यों होते जा रहे हैं? And I think from Tamil Nadu we have already seen that, you know, the government saying that okay, now instead of giving rehabilitation, you put people in a homeless shelter. It happened when Baljit Nagar was demolished. The judge said कि इनको एक रैन बसेरे में डाल दो तो problem solve हो जाएगा. So I think that's something that this campaign is acutely conscious of, and we have to really push for that. And I also feel that at least in the homeless struggles, I feel the homeless people are the ones leading this part of the movement at least. You know, their voices are always there. Everything is consulted with them. आज शायद इतने बेघर लोग नहीं आ पाए यहाँ पर उन लोग आजकल बहुत ज़बरदस्त उनका संघर्ष सड़क पे चल रहा है शेल्टर्स के लिए. कल भी 2-3 शेल्टर्स टूटे हैं दिल्ली में रेलवे की तरफ से. तो आई फील कि उनको यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है. पर ये नहीं है कि हम लोग कहीं हवा से बात कर रहे हैं. हम लोग बहुत और हर शहर में जहाँ पे ये संघर्ष कैंपेन हो रहा है मेरे ख्याल से होमलेस लोग जुड़े हैं. तो वो आवाज़ और भी बढ़ाना है. अच्छा कमेंट अच्छा क्योंकि आज जो बात की वो बहुत ही अहम है और वो ये इनफैक्ट वेरी लार्जर इशू. बट प्रेजेंटली इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सिस्टम के अंदर ये जो जुडिशरी बनी है वो हमारे लिए नहीं है. नोबडी हैज डाउट. साथ साथ ये जो सरकार है वो भी हमारे लिए नहीं है. ये एग्जीक्यूटिव्स हमारे लिए नहीं है. ये हम साफ साफ जानते हैं. लेकिन फिर भी हम इसी सिस्टम में रहते हैं. हम ही इसी लोगों को चुनकर भेजते हैं. हम ही ये जुडिशरी के साथ संविधान के तहत हम रहते हैं. तो हमें इस सिस्टम में काम करना है. सिस्टम बदलना है वो तो बड़ी क्रांति की बात है. वो बड़ी बात हो रही है. अगर हमारा राज है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन आज हमारा राज नहीं है. कोई गरीब का राज नहीं. आज जानते हैं कि ये यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी ये ग्लोबलाइजेशन के इलाके में कौन रूलिंग क्लास है. इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन जो मैंने बताया ये भी कोई एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं है. ये रेगुलेशन सरकार ने बना दिया है क्योंकि उनके पास पावर है. ये पावर का उन्होंने इस्तेमाल किया है. क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रगल का नतीजा हुआ है. नहीं तो वैसा ही तोड़ डालते हैं. क्या तोड़ डाल बुलडोजर आ गया 1000 झोपड़े तोड़ रहे चालू कर दिया. उस वक्त तो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं. उस वक्त पर हमें फायर फाइटिंग करना जरूरी हो जाता है. कोर्ट में हम क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं कि हमें कोई न्याय मिलेगा. लेकिन हम उसे एक इस्तेमाल करते हैं एज ए टूल कि एक सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है. एक स्टे ऑर्डर मिलता है ताकि हम और कुछ सोच सकें. लार्जर मूवमेंट हाँ खड़ी होनी चाहिए और इसके खिलाफ सिस्टम को बदलना चाहिए. लेकिन ये जब फायर फाइटिंग के टाइम पर हम सिस्टम बदलने की अब जब हम बात करते हैं तो लोग हमें ही गालियाँ देते हैं. जब मेरे पास लोग आते हैं साहब मेरा मकान टूट रहा है आप कुछ भी करके मुझे बचा दो. मेरे पास उनको मैं भाषण नहीं दे सकता. उनको तुरंत मुझे पैसा करके उसको स्टे ऑर्डर ही लेना पड़ता है. तो ये सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी के अंदर रहेगा. हम चाहते हैं कि ये 10 साल का मैं भी मानता हूँ ये कट ऑफ 10 साल कट ऑफ देयर शुड बी नो कट ऑफ. कोर्ट ने भी कहा है भाई मेरे ही ऑर्डर में कि देयर शुड बी नो कट ऑफ. लेकिन ये सिस्टम में कट ऑफ रहता है. अच्छा हम एक लाइन बोलेंगे ये कट ऑफ डेट की बात होने के लिए जो ये हम लोग के लिए भी डेंजर क्योंकि 2 साल की बात जो जगह पर आ रहे हमारा पॉलिसी एक्ट में हमें सिर्फ कोई कट ऑफ डेट नहीं. आने वाला कल जो हॉकर बनेगा उसके लिए भी मास्टर प्लान लोकल प्लान सिटी डेवलपमेंट प्लान में स्पेस रखेंगे. ये पास हुआ. टोटल सिटी में 2.5 स्पेस फॉर हॉकर्स रहेगा. कल जो हॉकर बनेगा उसका लिए भी. सो अगर स्ट्रगल लगातार स्ट्रगल हो तो ये संभव कट ऑफ डेट छोड़. थैंक यू शक्तिमान जी. थैंक यू अय्यर जी. थैंक यू दुनू जी. नीचे लंच सर्व हो गया है क्योंकि हम शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहे हैं.
अपना गुरु ही मानता हूँ, इसलिए हम मान लें कि वो जो सोच रहे हैं वही मैं बोलूँगा। थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। तो वो मैं रख रहा हूँ, और कुछ चीज़ें अगर लगती हैं तो आप लोग जोड़ दीजिए। पहला तो ये कि लखनऊ में और खास करके बाकी उत्तर प्रदेश के जो बाकी शहर हैं वहाँ पर सेंटर का स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं मतलब ये कि वहाँ पे ज़्यादातर अस्थायी रैन बसेरे हैं, स्थायी रैन बसेरे नहीं हैं। जैसे अगर लखनऊ में बात करें तो पिछली बार जब हम लोग घूम रहे थे तो करीब 27-28 के करीब रैन बसेरे खोले गए थे, जिनमें 2 रैन बसेरे स्थायी थे, जिनमें एक रैन बसेरा उन्होंने तत्काल जब अरुंधति जी को जाना था उसके 3-4 दिन पहले उन्होंने रंगवा पुतवा के तैयार किया था चारबाग रोड पे। दूसरा एक रैन बसेरा बहुत पुराना रैन बसेरा है जो श्रमिक सेवा आश्रम के नाम से है, और वो इंदू जी जब एक्शन एड में थे उस समय वो इंदू जी के समय का ही एग्रीमेंट था, इंदू जी उसके पार्टी थे उसमें, और वो सेंटर अभी विज्ञान उसको चला रहा है। हालांकि अभी उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है और उसमें भी तमाम सारी दिक्कतें हो रही हैं। मुख्य रूप से जो नजरिया है पूरा वो अस्थायी रैन बसेरे खोलने का है, स्थायी रैन बसेरे खोलने का नजरिया एक तो नहीं है। दूसरा, लखनऊ के अंदर 16 सेंटर्स की बातचीत की गई थी खोलने के लिए, जिनमें 5 रैन बसेरे अभी बता रहे हैं कि बनके तैयार हो रहे हैं और शायद फरवरी तक वो हैंडओवर किए जाएंगे, जिनमें 2 चल रहे हैं और 5 नए जो बनने वाले हैं वो फरवरी में बता रहे हैं, जब ठंड शायद खत्म हो जाएगी तब वो कंप्लीट हो पाएंगे। उनमें से कुछ क्या लगभग 3 या 4 सेंटर्स की विजिट हमने और अरुंधति जी ने पीछे भी करीब 15-20 दिन पहले शायद हम लोगों ने करी थी साथ में। और सेंटर की स्थितियां ये हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे जो होमलेस कम्युनिटी के लोग हैं, एक श्रमिक सेवा आश्रम को छोड़ दें तो बाकी जगह पे होमलेस कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं। जो चारबाग पे है उसमें जो लोग एग्जाम देने आते हैं या इस तरह से जो लोग हैं जिनके पास ID प्रूफ है, उन लोगों के रुकने की व्यवस्था है वहाँ पे। दूसरा, बाकी जगह पे अभी कहीं पे लोग हैं नहीं। इलाहाबाद की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है, वहाँ पे स्थायी रैन बसेरा जो कागज के हिसाब से मेरे ख्याल से 1 है वहाँ पे, और बाकी अस्थायी रैन बसेरे हैं। और अस्थायी रैन बसेरों की स्थितियाँ इतनी खराब है कि वहाँ पे टेंट लगा के बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस एक बैनर सिंपल सा नगर निगम का टांगेंगे और टेंट लगा देंगे। इसके अलावा वहाँ पे एक हम लोग बातचीत लगातार करते रहे, और अरुंधति जी ने भी जब बोला था शुरू में कि रैन बसेरों को कम से कम लेबर पोस्ट के जो मजदूर मंडियां हैं उसके आसपास बनाएं, क्योंकि अगर वहाँ नहीं बनाते हैं, और इस बात को हम लोग लगातार नगर निगम में भी कह रहे हैं कि लेबर मंडी के आसपास अगर आप रैन बसेरे नहीं बनाएंगे तो रैन बसेरे चलेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जो अभी सुबह बातचीत भी होकर मैं कह रहा था कि देवा रोड, लखनऊ से जो लोग परिचित हों, लखनऊ के बाहर एक देवा रोड है, उससे कुछ दूरी पे देवा जगह है, शहर का म्यूनिसिपल बाउंड्री उससे थोड़ा आगे भी है, लेकिन वो सेंटर वहाँ बना रहे हैं और वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है अभी, और वो कह रहे हैं कि शहर की सीमा के अंदर तो है और उसका 1 लाख के ऊपर एक बनना चाहिए, तो इसलिए शहर की सीमा है और 1 लाख के अंदर है, 1 लाख की पॉपुलेशन के 1 हो गया। तो हमको कम से कम इस तरह के उस पर भी बातचीत करनी चाहिए कि वो सेंटर बनने कहाँ चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर चाहे हम लोगों को मैप करना पड़े, चाहे जो होमलेस पॉकेट कहाँ पे हैं। जैसे इस सवाल को हमने और अरुंधति जी ने सभी ने उठाया था कि अमीनाबाद का जो इलाका है, लखनऊ में चौक का जो इलाका है, वहाँ पे रैन बसेरे बनाए जाने चाहिए, वहाँ पे शायद एक भी रैन बसेरे नहीं बनाया जा पाए। और ये कमोबेश कानपुर का भी यही स्थिति है, यही स्थिति बनारस का भी है, यही स्थिति आगरा का भी है। एक खास बात जिसकी ओर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, और उसके बाद मैं अरुंधति जी से कहूँगा कि वो आगे जोड़ें, कि सेल्टर में एक अभी कानपुर का एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने कंपनी को सेल्टर दे दिया, और वो कह रहे हैं, और देखने में सेंटर जब हम लोग विजिट के लिए जाते हैं सेंटर बहुत अच्छी तरीके से चलते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप वहाँ अंदर घुस के बातचीत करेंगे तो जो उस कंपनी के कर्मचारी हैं वो सेंटर के अंदर हैं और होमलेस जो है सड़क के बाहर सोते हैं। तो वहाँ पे आप बाहर जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी गार्ड भी मिल जाएगा, गद्दे भी मिल जाएंगे, पानी भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी, और साथ एक कलर TV भी मिल जाएगा, मगर वहाँ पे उस कंपनी के कर्मचारी होमलेस के नाम पे रह रहे हैं। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट, कानपुर में देख के भी आई हैं, तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो पूरा तरीका है, उसमें जो सेंटर्स को सौंपने का तरीका है, उसके ऊपर हमको बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे सेंटर बने और उसको कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाए तो ये पूरी लड़ाई एक तरीके से बेकार है, कि जो हम होमलेस की लड़ाई के लिए जो अधिकार की बात करते हैं उसके बजाय वो कंपनी के अपने स्टाफ को ठहराने के लिए शायद हो जाएगा। और मैं अरुंधति जी से बात करूंगा और संजय जी से कि वो आगे इसको गोती जी, आप
आपको पूरा उत्तर प्रदेश आपने घूमा है, थोड़ा हम बोलते हैं उसके बाद आप पूरा कंप्लीट करते हैं। रैन बसेरों की स्थिति में उससे बेहतर अनुतुल जी अभी अपनी संबोधन में बताएंगे, लेकिन एक मोटा जानकारी जो RTI के तहत हमने कलेक्ट किया है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। इलाहाबाद में 5 रैन बसेरा है जिसको नगर निगम ने RTI के तहत सूचना मांगे जाने पर दिया है और 6 प्रस्तावित है। बरेली में 2 स्थायी रैन बसेरा है और 4 अस्थायी रैन बसेरा ये भी प्रस्तावित है। आगरा में 2 स्थायी रैन बसेरे हैं। मुरादाबाद में रैन बसेरा है ही नहीं, शायद वहाँ होमलेस लोग नहीं हैं। गाजियाबाद में 11 रैन बसेरों का निर्माण हुआ। कानपुर में 1 रैन बसेरा है स्थायी रूप से, झांसी में बिल्कुल नहीं है। गोरखपुर में 2 रैन बसेरा है। लखनऊ में 5 स्थायी रैन बसेरा है। अलीगढ़ और मेरठ से सूचना अभी तक अप्राप्त है, मेरठ में भी यही स्थिति है। वाराणसी में 2 स्थायी रैन बसेरा है, 5 अस्थायी रैन बसेरा प्रस्तावित है। और यहाँ पे जो है खासकर क्योंकि इलाहाबाद और कानपुर में हमारा काम चल रहा है, तो कानपुर में अभी संदीप भाई ने जो बताया वो बिल्कुल सच्चाई है। और इलाहाबाद में क्योंकि अरुंधति पिछले ठंड में आई थी, तो वहाँ 5 रैन बसेरे हैं, 8 रैन बसेरे स्थायी रूप से बनाए गए थे, जो इनके विशेष रूप से इनके द्वारा कहा गया था कि ठंड के बाद ये बंद नहीं होना चाहिए। वो फरवरी के बाद तुरंत बंद कर दिया गया। और अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो उन लोगों ने जो है अभी कोई जानकारी नहीं दी कि इस समय कुछ वो लोग रैन बसेरा बनाने के विषय में कुछ कर रहे हैं। इलाहाबाद के परिप्रेक्ष्य में जितने भी रैन बसेरे हैं वहाँ कहीं भी पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। शौचालय की भी यही व्यवस्था है। शीतलहर के बाद सारे शेल्टर बंद कर दिए गए। प्रचार प्रसार का बिल्कुल कोई तरीका अपनाया नहीं गया है, ना ही बहुत ज़्यादा NGO की मदद ली गई है, ना उनके साथ कोई मीटिंग प्रॉपर रूप से की गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमिश्नर की एडवाइजर कमेटी के मेंबर हैं, अगर वो लोग आ जाएं तो शायद अधिकारियों के ऊपर एक प्रेशर बन जाए। जो हम लोग चाह रहे हैं एक सारे सुविधायुक्त शेल्टर, शायद तभी हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि अधिकारियों की चमड़ी बहुत मोटी है। ये उस समय जब टीम के सदस्य को आना था तो आनंद फानंद ने 5 दिनों के अंदर सारी तैयारियां की, और जैसे ही गए 4-5 दिन के बाद उसमें सारे लोग जो है वापस बुला लिए गए नगर निगम के, और पूरी तरह से उसमें गाय भैंस रहने लगे, और 1 महीने के बाद वो भी उखाड़ दिए गए। तो ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो शेल्टरों की स्थिति है, जहाँ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं वहाँ है। और हमारे साथ RTI के तहत हमने जो सूचना मांगी है वो भी हम आपको सौंप रहे हैं, और जो हमने जो चलाया है उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास है। ये दोनों हम दे रहे हैं। धन्यवाद। जय थैंक यू सो मच। मैं खाली पॉलिसी इश्यूज पे कहूँगी। मुझे लगता है 2-3 मुद्दे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। एक तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल म्यूनसिपल इलेक्शंस नहीं हुए हैं, ये मेजर मामला है। तो हमारे